नमस्ते, स्वागत है आपका शब्दों के सफ़र के नए एपिसोड में। तो शब्दों के सफ़र के नए एपिसोड में इस पर हम आपके सामने लेके आए हैं विवेक आत्रे जी को। विवेक आत्रे जी जो है एक्स IAS रह चुके हैं, साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ये टेडेक्स पे काफ़ी सारी स्पीचेस भी दे चुके हैं। इनसे हमने बात की UPSC जर्नी के बारे में कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उन्हें कौन सी ऐसी स्किल्स की ज़रूरत है जो UPSC एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उनके काम आएंगी, और अगर आप UPSC एग्ज़ाम को क्रैक नहीं भी कर पाते हैं तो ऐसी कौन सी स्किल्स है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आप अपनी कंट्री को, अपने नेशन को सर्व कर पाए। तो आइए जानते हैं विवेक आत्रे जी से वो सारी डिटेल्स जो कि UPSC एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहती है, वो सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में रहते हैं इस वीडियो के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू शब्दों का सफर and it's an honor to have you here. So thank you so much. Thank you so much for joining me here. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Fufa, first I would like to start from what is the real unspoken reason that people have massive crave towards government jobs and having the desire to for the country. Maybe it is for the reason that they have the secure salary or the lifelong pension, or is there any other reason that people are seeking? Yeah, so there are 4 or 5 types of careers, and one of them is government service, one is private service. Yeah. Then you can be a self-employed professional, you can be a business person, Yeah. you can be working for an NGO. Yeah. So several people still prefer government jobs, and families prefer their children to be in government jobs. Yeah. The children themselves who are 18 to 20 years old may not be deciding on government jobs unless their families tell them about it. Yeah. Or they have seen something on social media which attracts them, some IAS officer or IPS officer's personality or something like that. So then they get into this government quest, and then competitions will happen. So it's a tough road, but yes, a lot of people are still appearing for competitions for the joining the civil services or government posts, and not enough posts are there. So many people will be disappointed, but I think if you are intelligent and if you have a inclination for service, then you should definitely go for it. Yeah, for mostly the people are joining due to their family pressures and all, and only few are joining it for the crave of joining it and serving the nation. Yeah, unless they are aware of what it entails, they should not be going for it. First, they should find out whether it is suitable for them, their personality, their way of thinking. Yeah. If you want a Mercedes, then don't try for a government job. Yeah. You are not thinking in the right way. Yeah. So you should try for a government job only if you want to serve the nation. Yeah. And for the coaching industry, also the $1 million business. Today it's running it if building the strong foundation that helps us building the strong career, or is it the thing that it is making us handicapped or dependent that we need to study the flavors that have already provided, or is it the skills that are something different that we need to build? I think we need to work on our basic skills and qualities, and we need to be all-rounders. Yeah. So when you appear for a competitive exam, you need to be an all-rounder. Unless you are going to be a chemistry professor, that's a different matter. Yeah. Then you need to be very good at chemistry. Yeah. But if you are going to be a civil servant or even a bank officer, you need to be quite an all-rounder. It's very important for you to be quite good at your work and good at your GK and good at your awareness levels, and good at your communication skills. It's extremely important. And it is also important for us to work on our quality. So coaching, etc., will be important for a while, but we should not go overboard with coaching. It is more on your own qualities and skills you should work. And you can find out the trend from coaching institutes. That's fine. So that's good enough. So it's the overall personality development that a candidate need to do. Yes, and yes, for preparation for the exam, you can join a coaching academy for 6 months to 1 year maximum. Yeah. But don't join for 3 years. You don't really need coaching for 3 years. If you're appearing for 3 times the UPSC exam, don't take coaching for 3 years. I would say that 1 year you can take coaching, 1 year you can work full time on it. Next 2 years, if you want to appear again, you must be doing something else apart from your UPSC. Yeah. That is what. So there should be a plan B that every aspirant must look for, if there is also the less succeeding rate for the candidates that are going for it. Absolutely right.
ओके। एंड फॉर काफी लोग ऐसे भी होते हैं दैट दे हैव रेड ऑल द एनसीईआरटीज बट लैक द प्लान बी एंड स्पेशली द डिजिटल स्किल्स एज वी ऑल नो दैट एआई इज टेकिंग ओवर द प्लेस। एंड जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं दे स्टिल हैव द नॉलेज अबाउट द डिजिटल एडिक्वेसी दैट आर दे आर फेसिंग। बट जो लोग जो एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं वो खाली कोर्स का एक तरीके से पढ़ रहे हैं बट दे डू लैक द एआई स्किल्स एंड द डिजिटल लिटरेसी। सो कितना इम्पोर्टेंट है एज एन एस्पिरेंट कि आपके पास डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो डील कर पाए फास्ट पेसिंग वर्ल्ड के साथ में भी, और जो पेपर नहीं भी दे पा रहे हैं, क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बैकअप प्लान के साथ जा सके। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। डिजिटल स्किल्स आजकल ज्यादातर लोगों के पास हैं, और अगर यंग जनरेशन को देखें वो तो इसी में बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं जी और वो इसी में जी रहे हैं। तो बहुत डिजिटल स्किल्स आजकल मिल जाते हैं और बहुत केपेबल लोग हैं इसमें। जी प्रॉब्लम ह्यूमन स्किल्स में, प्रॉब्लम है लीडरशिप स्किल्स में, क्योंकि हम ज्यादा टेक्नोलॉजी में फंस गए हैं। तो हमें थोड़ा सा इससे अलग होके ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के बाहर। जी क्या हम मोटिवेट कर सकते हैं अपनी टीम को ज्यादा काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए? क्या हम किसी को प्रेज कर सकते हैं जिससे वो इंकरेज फील करें? क्या जी हम किसी को सांत्वना दे सकते हैं, कोई सिंपथी दे सकते हैं, एम्पथी रख सकते हैं? ये स्किल्स आजकल कम होते जा रहे हैं। दे आर रिक्वायर्ड। डिजिटल स्किल्स तो मिल जाएंगे आपको। जी और जहां तक बात है नॉलेज, अवेयरनेस, जीके, ये चीजें तो आपको करना ही पड़ेगा। जी ये चीजें ज्यादा डिफरेंशिएटर नहीं है। डिफरेंशिएटर इज योर पर्सनैलिटी, जी योर कम्युनिकेशन, जी योर कॉन्फिडेंस, योर एनालिटिकल स्किल्स, जी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका जो परसीव करने का, एनालाइज करने का, अंडरस्टैंड करने का एक ढंग। जी तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि आपने कितनी पढ़ाई की और कितनी आपने चीजें याद करी, या आपको जी कितनी इंफॉर्मेशन आती है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो सभी उसके लिए तैयार है। जी। मतलब कोर नॉलेज से ज्यादा उन्हें ह्यूमन स्किल्स बिल्डअप करने की भी जरूरत है ताकि वो टैकल कर पाए कि जो भी उनके पास बिल्कुल चैलेंजेस आए। ओके। बिल्कुल एंड बिल्कुल बिल्कुल। अ लॉट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स जो डिफरेंस बनाना चाहते हैं, कम्युनिटी में डिफरेंस लेके आना चाहते हैं, तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए आपके लिए क्या मतलब आपकी गाइडेंस रहेगी कि कोई एस्पायरिंग चेंज मेकर्स हैं तो वो इम्पैक्ट कैसे ला सकते हैं? मतलब अगर वो सर्विस में नहीं भी हैं बट स्टिल दे वांट टू मेक एन इम्पैक्ट टू द सोसाइटी, और काफी सारे ऐसे भी है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, दे वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं या कर रहे थे खुद? हाँ जी। अच्छा, अभी कर रहे हैं? आज जी। अच्छा, गुड। तो चेंज मेकर्स कैन बी विद इन द सिस्टम एंड आउटसाइड द सिस्टम। जी और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने स्किल्स और क्वालिटीज को डेवलप करने से, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप ट्राई जरूर करिए। जी अगर आपका हो गया तो वो भी ठीक है। अगर आपकी सिविल सर्विसेज में एंट्री नहीं हो पाई, जी आप बहुत तरीकों से पब्लिक सर्विस अभी भी कर सकते हैं। जी कई कंपनीज में आजकल सीएसआर एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल जी। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी तो बड़ी कंपनीज जो है, वो इन्फोसिस है फॉर एग्जांपल, जी वो क्या कर रहे हैं कि वो ग्रास रूट लेवल पे स्लम्स में, विलेजेस में एजुकेशन, हेल्थ केयर जी अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, एनवायरमेंट अवेयरनेस पे काम कर रहे जी हैं। अब अगर उनको भी तो चाहिए लोग जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, और वो भी पढ़े लिखे और वेल यू नो शार्प एंड इंटेलिजेंट पीपल। तो ये लोग जो हैं वो अगर आएंगे तो एक जॉब भी बन सकती है ऐसी कंपनीज में, जिसमें आप सोशल सर्विस भी कर रहे हैं जी लेकिन जॉब भी कर रहे जी हैं। एनजीओज भी आजकल बहुत से बच्चों को एंगेज करती हैं, यंगस्टर्स को, जो जी कि बड़े एनजीओज हैं, जो कि सीएसआर फंडिंग से चल रहे हैं, इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 10, 20, 50, 100 यंग इंजीनियर्स या कॉमर्स ग्रेजुएट्स या आर्ट्स ग्रेजुएट्स को एंगेज किया हुआ है। जी तो ये भी एक तरीका जी। एंड फिर वी ऑफन टॉक अबाउट आईक्यू, तो व्हाट है। अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हम लोग जो आईक्यू की बात तो करते हैं बट इमोशनल इंटेलिजेंस की इतनी नहीं करते हैं। तो एक ऑफिसर के लिए कितना क्रूशियल होता है कि वो अपने इमोशंस को मैनेज करे, या फिर जब वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वो अपने इमोशंस को मैनेज करे एंड साथ में उनको समझ पाए कि एक्चुअल में लोग चाहते क्या हैं। बिल्कुल सही आपने एक बात की है, और ये एक बहुत ही वाइटल बात है। जी आजकल क्या है कि मैंने पहले भी कहा कि ह्यूमन ह्यूमन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, जी
कब, देखिए इसमें क्रक्स ये है, कब क्या कहना है और किस तरह से कहना है, कब आपने कैसी बात करनी है, कम्युनिकेशन क्या करनी है, जी कितनी बात करनी है। ज्यादा बोलना किसी कंपनी में जहां पे सीनियर लोग हैं, कोई और आपकी बारी उतनी, अब जैसे टीवी डिबेट्स देखते हैं आप, हाँ जी तो इनमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादातर लोगों में बहुत ही कम है। वो उनको पता ही नहीं कि बंद कब जी होना है जी और चुप कब होना है और जी कैसे बात करनी है। जी कई बार क्या होता है, चिल्लाने वाले मैचेस है। अब जी शाउटिंग मैचेस में अगर एक आदमी शांत अगर बैठा हुआ है ना, जी वो बेटर है। जी सब नोटिस कर रहे हैं कि ये शांत बैठा है, हाँ जी तो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड देन टॉकिंग टू समबडी इन एन अंडरस्टैंडिंग वे। हर हर आदमी आपके जैसा नहीं है, तो जी आप उसको कैसे आप जाके उसको एम्पैथी दिखाते हैं, जी कैसे आप किसी अंडर प्रिविलेज से बात करते हैं, कैसे आप किसी को प्रेज करते हैं, एनकरेज करते हैं, दीज आर लीडरशिप स्किल्स। जी और क्या आपको नहीं करना चाहिए किसी सिचुएशन में, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, जी आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। जी ये सिर्फ एक नॉलेज या इंफॉर्मेशन से नहीं आता, एक एक्सपीरियंस से जी आता है। और जी अपने ऊपर काम करे, सब में ये शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, हाँ तो जी शॉर्ट कमिंग्स को दूर करना हमारा काम जी बस। एंड बाकी फिर एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है एस्पिरेंट्स का। नॉर्मली सबसे बड़ा डर ये रहता है कि हमने बहुत सुना है कि जो है सर्विस में पॉलिटिकल प्रेशर है। तो हाउ डू यू एज एन ऑफिसर हैंडल सिचुएशन जहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो है पॉलिटिकल प्रेशर से आप कैसे डील करते हैं? पॉलिटिकल प्रेशर इसका पार्ट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी जॉब में आपको कोई ना कोई प्रेशर होगा। जी कॉर्पोरेट जॉब में भी होता है कहीं ना कहीं कोई कोई प्रेशर। इवन मैं आपको बताता हूँ, कॉर्पोरेट कंपनीज के सीईओ या ओनर हैं, जी उनको भी एमएलए का फोन आता है जी कि आप हमारे इलाके के कंपनी है, आप हमारे 2 लड़के रख लीजिए, जी एम्प्लॉय 2 पीपल फ्रॉम आवर एरिया। जी सो कंपनी के सीईओ को भी पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है। जी वो अगर कहेगा नहीं सर, ये 2 लड़के हमारे लायक नहीं है, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं फुलफिल करते, एमएलए जी नाराज हो जाता है। जी देन सो इन द गवर्नमेंट ऑल्सो इट कैन हैपन, लेकिन उतना नहीं है जितना बाहर से लगता है। जी पॉलिटिकल प्रेशर जरूर है, जी लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद, विदाउट getting losing your balance, you can keep working hard, you can keep doing your work। और पॉलिटिशियन का भी ये होता है, वो देख लेते हैं एक बार ऑफिसर को कि अगर ये ऐसे ऑफिसर हैं जो हर बात मान जाते हैं हमारी, जी तो फिर वो बोलते ही रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ प्रेशर डालते रहेंगे। हाँ जी और अगर आप कभी कभी स्टैंड ले लेते हैं कि सर ये तो ठीक है, जी लेकिन ये जो आपने बोला ये नहीं हो पाएगा, दिस जी कैन नॉट बी डन बिकॉज दिस इज नॉट एज पर जी रूल्स, तो देन द पॉलिटिशियन ऑल्सो गेट्स द मैसेज दैट दिस पर्सन कैनॉट बी पुश्ड अराउंड टू। जी ये जरूर। मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए। मतलब बैलेंस करने के लिए आपको अपना स्टैंड लेना भी आना चाहिए, इन साथ में उनके साथ डील करना भी आना चाहिए। बिल्कुल, आपको स्टैंड लेना है और आपको डील करना भी आना है। और जब आप उनसे बात कर रहे हैं, जरूर रिस्पेक्ट से बात करिए, जी और लेकिन फर्मली बात करिए कि सर ये नहीं हो पाएगा, मैडम ये चीज नहीं हो पाएगी, ये बात सही नहीं है। जी जो दूसरी आपने बात कही थी, वो वाली जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो गांव में कोई काम रुका हुआ था, वो हाँ जल्दी जी होना है, वो ठीक है। जी तो दैट इज हाउ यू टॉक टू द एमएलए। जी एंड फिर आज के टाइम में जैसे कि हम लोग हर चीज में काफी फास्ट पेस हो चुके हैं, तो हाउ डू स्टे काम एंड पर्पस ड्रिवन कि कुछ भी सिचुएशन है, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो उसमें भी काम रहना या कुछ अपना इनर पीस मेंटेन करना, साथ में सिंप्लिसिटी मेंटेन करना, तो वो कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं? हाँ, तो आपने बड़ा बैलेंस क्वेश्चन पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम सबकी लाइफ बड़ी फास्ट, जी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग रखी थी, फिर कोई और मीटिंग आ गई, फिर कुछ और मीटिंग आ गई, जी तो अभी भी मैं, और जबकि संडे है, जी लेकिन लाइफ इज फास्ट एंड बिजी, जी एंड कभी हम खाली नहीं बैठे। तो हाँ शांत रखने के लिए, अपने आप को काम रखने के लिए, आई थिंक देर आर 4 or 5 थिंग्स। और इसी में मैं बात करता हूँ कई बार कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी जी चाहिए, ओवर थिंकिंग को कम करना चाहिए, हमें एटलीस्ट रिड्यूस कर देना चाहिए। उसके लिए एक तो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। जब जी आप फिजिकली फिट हैं तो आप शांत रहेंगे, क्योंकि आपने दौड़ लगाई है, आपने बैडमिंटन खेला है, आपने कुछ किया है ऐसा जिससे आपको कामनेस मिली। जो स्पोर्ट्समैन होता है, वो बाहर आके ज्यादा उत्तेजित या एक्साइटेड नहीं होता, उसकी बॉडी माइंड उसके हॉर्मोन्स काफी स्टेबल हो जाते हैं। जी तो स्पोर्ट्स या फिटनेस वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी आजकल हम मेडिटेशन फॉलो कम कम लोग करते हैं, कुछ करते हैं। जी मैं फॉलो करता हूँ, ये बुक मेरे पास है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ऑटोबायोग्राफी, यस वेरी फेमस बुक, या वेरी फेमस बुक। एंड ही, परमहंस योगानंद, बड़ी यंग एज की फोटो है कवर पे उनकी। जी ही टॉट अस दैट क्रिया योगा या मेडिटेशन योगा, का पाथ। या
और ये कई कई ऑर्गेनाइजेशन टीच करती हैं। कोई भी पाथ आप ले लीजिए, साइंटिफिक मेडिटेशन करिए 2 टाइम कम से कम, और कीप योर सेल्फ अब्जॉर्ब्ड इन गॉड। तो फिर हमारा मेडिटेशन से हम शांत हो जाते हैं, कामनेस आ जाता है। जी और फिर आप बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ने से यू विल बी वेरी मच बेनिफिटेड। एनी बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इज अ ग्रेट बुक। yeah देयर आर अदर बुक्स, आई हैव आल्सो रिटन 5 बुक्स। yes तो कोई ऐसी बुक्स पढ़िए जो आपको लाइफ में हेल्प करे और जो एंटरटेनिंग भी हो। yeah और एक और है कि क्रिएटिव भी बनना, क्रिएटिव। जी तो क्रिएटिविटी से हमारा जो टेंशन कम हो जाते हैं, आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, इसमें हम क्रिएटिव बन जाते हैं और शांत हो जाते हैं। जी और 5th पॉइंट मैं इनको बोलता हूँ सब यंगस्टर्स को जो ज्यादा टेंशन में होते हैं या नहीं होते, कॉन्वर्सेशंस। हम तो चलो पॉडकास्ट में बात करते जी हैं, और आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे जी तो आपको बिल्कुल टेंशन कम हो जाएगी। आप जी वैसे तो मेरे से भी बात करके आपकी टेंशन बढ़नी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी जी चाहिए, लेकिन कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी तो पीपल शुड टॉक टू ईच अदर, लिसन टू ईच अदर मोर। जी जेनजी की ये इशू है कि वो ज्यादा टेक्सटिंग में है, ज्यादा टेक्सटिंग चलती है, जी जी और कॉन्वर्सेशन बात कम होती है। बात करना एक ह्यूमन टेंडेंसी, जी तो कामनेस पे काम करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एक शेयरिंग एंड लिसनिंग स्किल्स जो हम लोग लैक कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो स्किल्स होनी चाहिए ताकि ज्यादा इंटरेक्शन हो पाए और ज्यादा हम ह्यूमन बिहेवियर को भी समझ पाए। बिल्कुल, जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, हम लोगों ने एक कैंपेन भी शुरू किया है, जी थिंक ऑफ अदर्स। जी तो थिंक ऑफ अदर्स जो कैंपेन है, इसमें भी हमने यही किया है कि हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, दूसरों के बारे में केयरिंग करिए, कुछ एम्पथी बढ़ाइए। उससे आपकी लाइफ का एक जो रुझान है वो बेटर हो जाता है। ये मैं आपको लोगो भी दिखा देता हूँ कि बड़ा जी इंपॉर्टेंट कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया है। जी ये इसमें नहीं दिख रहा होगा अभी, जी फॉर टारगेट और अटैच इट इन आई विल सेंड इट टू यू। या थिंक ऑफ अदर्स, या राइट। फॉर दैट इज अबाउट द कैंपिंग जहाँ पे वो लोग अलग अलग लोगों से बात करते हैं एंड मैं भेज इंटरेक्ट। दूंगा। जी जी सर। एंड फॉर यंग प्रोफेशनल जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो ऐसी कौन सी 3 नॉन नेगोशिएबल आपको लगता है कि ऐसी ह्यूमन क्वालिटीज हैं अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक नॉलेज जो कि एक एस्पिरेंट में होनी चाहिए इस सर्विस को क्रैक करने के लिए? आई थिंक क्वालिटीज जो हैं वो, एक तो आपने बड़ी अच्छी क्वालिटी की बात की, विच इज कामनेस। जी Calmness is something which will give a lot of freedom from negativity. एंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना, मेटिकुलस होना, और टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे आपने अगर यूपीएससी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जी तो यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर फिजिकल फिटनेस ऑल्सो। जी यू हैव टू टेक आउट टाइम, मेक अ टाइम टेबल। जी स्लीप हैज टू बी सफिशिएंट, स्लीप इज इम्पोर्टेंट। या बीच में फैमिली टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फ्रेश होके पढ़ना है। जी अगर आप पढ़ रहे हैं और आप 12 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, आपका ब्रेन खत्म है, जी तो आप क्या पढ़ोगे? जी तो यू रिफ्रेश योर सेल्फ, बी ऑर्गेनाइज्ड। जी then I would also say that you have to be a little more energetic, एनर्जी हाई होनी चाहिए, और enthusiasm चाहिए। जो जो आपका लक्ष्य है, जो गोल है, जी उसके लिए तो आपको एनर्जी चाहिए। जी और lastly I would say that be very smart in your life, be knowing yourself well, जी know that these are my drawbacks, I need to work on these drawbacks, these are my strengths। जी तो ये पता होगा तो फिर हम बेटर काम करेंगे उसमें। जी। एंड फिर इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वो एक फाइनल हर्डल होता है, तो ऐसी जी, आपको कौन सी क्वालिटी लगती है जो कैंडिडेट में होनी चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट, कि उसका क्या माइंडसेट होता है जो कि वो लोग चेक करते हैं या जो भी आपके इंटरव्यू है वो चेक करते हैं वहां पे, तो कौन से ऐसे माइंडसेट की जरूरत है सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए? सो वो जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, वो इसलिए होता है कि दे वांट टू सी हाउ यू आर, दे डोंट वांट टू सी व्हाट यू नो। वो तो उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस में देख। जी इंटरव्यू जो होता है उसमें वो आपकी अंदर का जो मेकअप है आपका, वो देख रहे हैं कि जी आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, जी आपकी कामनेस कितनी है, आपकी डिसीजन मेकिंग क्या है। जी और आपको कई बार वो ऐसा क्वेश्चन भी पूछेंगे जो थोड़ा सा आपको टेंशन में डाल देंगे, या कुछ पूछेंगे कि अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है, समथिंग हाँ लाइक। जी So then you have to think in an alert way. So they want to see your alertness, your balance. आपने कोई बात की इंडिया की, वो जी बोलेंगे चलो इंडिया के ड्रॉबैक्स बताओ और इंडिया के प्लस पॉइंट्स बताओ। जी तो इंडिया के आपने 2 ड्रॉबैक्स बता दिए, जी प्लस पॉइंट्स आप बता नहीं पा रहे हैं, जी तो दैट मीन्स यू आर अ नेगेटिव थिंकर। जी सो मैं आपको 100 प्लस पॉइंट्स गिना सकता हूँ इंडिया के, जी और 100 नेगेटिव पॉइंट्स भी गिना जी सकता हूँ। तो पॉइंट ये है कि हमें बैलेंस हो। जी
जी। बाकी फिर आपने पब्लिक स्पीकिंग में भी चेंज किया अपना जो बैकग्राउंड था फ्रॉम एन आईएएस, तो आपने जो है पब्लिक स्पीकिंग में ऑथरशिप में आपने चेंज किया, तो उसमें आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सीक्रेट टिप्स हैं अगर आपको किसी को एक एक्सेप्शनल पब्लिक स्पीकर बनना है जो कि गेम चेंजर हो सकती है आज के टाइम पे? आपने बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो उसमें मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। स्टेज पे या कैमरे पे जाने से पहले यू शुड नो योर कंटेंट एंड प्रैक्टिस। या लेकिन उसमें स्टेज पे जाके आपको ज्यादा कोई दूसरा अवतार नहीं लेना है, कोई डोंट बिकम समबडी एल्स, या डोंट ट्राई टू कॉपी समवन एल्स लाइक धोनी और कोहली और रोहित शर्मा और समबडी। बी योरसेल्फ या and bring some energy into your speaking. तो आप जब स्पीच दे रहे हैं तो इट कैन नॉट बी जस्ट कैजुअल कूल लाइट, उसमें हमें थोड़ा एनर्जेटिकली बोलना है, ऑडियंस के साथ एंगेज करना है, या इंटरेस्ट की बात करनी है, स्टोरीज सुनानी है, ह्यूमर भी होना चाहिए। या तो मैंने कुछ TEDx टॉक्स भी दिए हैं या और भी टॉक्स दिए हैं, तो मेरा ये रहता है हमेशा कनेक्ट विद द ऑडियंस। So right now you are asking me questions. I have to be organized. I can't go on speaking on one question for 10 minutes. या Then I can't come to the next question. So it has to be 1 minute, 2 minute answers, and then you come to the next one. So public speakers have to be very meticulous, planned, energetic, but above all, be yourself. This is या important. ओके सर। एंड सर एज यू समवन सर्व द कंट्री और अब आप यूथ को भी मेंटर कर रहे हैं, तो आपका क्या एक आइडिया, आपके क्या थॉट्स है कि इंडिया का जो पोटेंशियल है कमिंग डिकेड में वो कैसा टाइप का है, या इंडिया का फ्यूचर क्या है? मतलब आपको क्या चीज एक्साइट करती है अबाउट द नेशन फ्यूचर करेंटली? The youth is very skilled and very intelligent and very balanced. अगर सोशल मीडिया और नेगेटिव एनवायरनमेंट उनको नहीं खराब करता तो वो बड़े अच्छे हैं। they are all very good. Young people are the future of the country and they are very sensible also. Only they see some bad examples, role models are less, so then they get into bad company at times. Otherwise, I think the youth of India is the most important asset that India has. या Plus, even though we are overpopulated, लेकिन population भी stable हो जाएगा। So when the population stabilizes, let us say 2050 में हो गया, 60 में हो गया, जी उस टाइम फिर then India has to organize its resources. And we need to take care of the environment. India needs to also take care of the environment because climate change is creating a lot of difficulty. जी And we need to take care of the disparity of economic disparity, financial disparity. जी तो ये चीजें हैं। बाकी एक्साइट जो करता है वो यही है कि यूथ का पोटेंशियल, और मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट में भी ऑफिसर्स आ रहे हैं, यंग ऑफिसर, वो भी अच्छे हैं। जी And we need to make the system a little more friendly to the citizen so that they can do well. या फाइन द इन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहेंगे आईएएस एस्पिरेंट्स को, जो उनको चाहिए, मतलब बुक्स के अलावा ऐसी चीजें जो ट्रूली मैटर करती है उनकी जर्नी में? आई थिंक एक तो पेरेंट्स को अपने साथ रखिए, उनका कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जी। सिस्टर ब्रदर पेरेंट्स शुड बी विद यू। जी डोंट ओवरवर्क, प्लान योर डे, प्लान योर वीक। 80-20 रूल होता है मैनेजमेंट में। 80% वो काम करना है जो मेन गोल है, 20% टाइम फॉर अदर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो ये करेंगे तो फिर हमारा वो 80% भी सफिशिएंट होगा, एफिशिएंट होगा। जी आउटपुट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इनपुट। जी So plan your life, plan your day. Don't appear more than 3 times. मैंने बहुत लोगों को बताया, 2 दफा 3 दफा में आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आप हैं। जी अगर आप नजदीक हैं तो ठीक है, अपीयर अगेन। अगर आप बहुत दूर हैं तो फिर डोंट। और जी फिर आप इंडियन क्रिकेट टीम में ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच में स्कोर नहीं बन रहे आपके, तो फिर जी डोंट ट्राई। जी You have to be very clear, and then it's not a heartbreak. Just go for something else which is right. लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर गो फॉर इट। जी वो हम लोग वाइंड अप करते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो Thank मच। you very much. You asked good questions. I was happy. You can share these thoughts with all youth, श्योर and we'll meet again. यस श्योर, थैंक यू सो मच। नमस्ते। तो कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड विवेक आर्ट्री जी के साथ में? ऐसे ही नए एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।